This is conditional probability. In that, let A and B be any two events in a sample space S. So there is a sample space which is known as S, and the probability that B will occur that A has already occurred is called the conditional probability of B, and it is denoted by B by A. Means what? The probability that B will occur means what? We have to find out the probability of B such that probability A is given to you. So this is known as what? Conditional probability. Conditional probability of B. We have to find the probability of B in such a way that probability of A is already given to you. And the notation of this probability is given by this P of B by A. Means what? We have to find probability of B. तो इसको पहले लिखने का and then probability of A is given. So इसको बाद में लिखने का. जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है. Probability of B by A. So this is known as conditional probability. Okay. Similarly, what we have to determine? We have to determine the probability of A, probability of A such that probability of B is already given to you, and the notation for that is given by P of A by B. जिस ऑर्डर में आपको दिया रहेगा उसी ऑर्डर में आपको लिखना है probability of A by B. So this is what conditional probability of A. Okay, so this is the simple definition for conditional probability. Now, okay, what do you mean by multiplication theorem? So here, if two events are given, let A and B be any two events in the sample space S. Your S is a sample space. So this is your sample space S is given. Okay. Sample space S. And neither is null means what कि A आपका empty नहीं है. A and B is not a empty set. A and B is not a empty set. Neither of this is null means not equal to 5 है. Okay. Then the probability that both of them will occur is given by P of A intersection B. This is what P of A intersection B. P of A intersection B. This one. And this equal to P of A into P of B by A. Means what? This is the conditional probability of B, or you can define like this: P of A intersection B equal to P of B into P of conditional probability of A, that is P of A by B. Okay, where P of A by B and P of B by A denote the conditional probability which are greater than 0. Means this is not equal to 0, and these are the conditional probability. So you can write this equal to what? That is what? P of A into P of B by P by A. Okay, if I want to ask find the probability of conditional probability of B by A, then what happen here? So you write here probability of B by A, and this is equal to what? Probability of A intersection probability of B divided by probability of A. So this is one formula for conditional probability of B, and similarly you can have also you will have probability of A intersection B, and this equal to this probability, that is what? P of B into P of A by B. Okay, so if I ask find the conditional probability of A by B, then what happen here? So you can determine P of A by B, and this equal to P of A intersection B by P of B. Okay, so this is the formula number 1 and formula number 2. इस तरह से आपको P of conditional probability of निकाल सकते हैं by using this. So means what? P of A intersection B is non-empty means some value will be there. If you want to find P of A intersection B, so that will be some value. Means what? वो zero आपको नहीं मिलेगा. Okay, so this is probability of A intersection B. Okay,
So your explanation for this is this. Getting? Now we will have the total probability theorem, and based on this we will do some problem. The problems are very important for you. So we next is total probability theorem. So what is the total probability theorem? Let the events a1, a2, a3 up to an be partitions of sample space S. Partitions of sample space S means what? Suppose आपका कोई sample space है, ये आपका sample space है. This is the your sample space. आप इसको S, दिस इज द सैंपल स्पेस S. पार्टीशन ऑफ S मीन्स आपका A1 आपका A है, A1 है, आप A2 आपका ऐसा हो गया A2, ओके, A2, then you will have A3, A3 up to what? A पूरा सपोज AN है, ठीक है. सो दीज आर द पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेसेस. इसके एस के क्या है? टुकड़े हैं, छोटे 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 टुकड़े हैं. ओके, सो इवेंट्स A1, A2, A3 up to AN are partitions of sample space S and B be some events defined on S. B भी सपोज कोई इवेंट है, यहाँ पे S में ही डिफाइन किया है, यहाँ पे है, सपोज ये वाला है. B with the event defined on the sample space S. Then the probability of B, B की प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिलेगा? B की प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B A1 के साथ, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B A2 के साथ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B A3 के साथ, अप टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B AN के साथ, और सभी का सम्स जो करेंगे दैट इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम. गेटिंग दिस मच? यू गेटिंग? स्नेहा आर यू गेटिंग? सिद्धेश? यस सर. समझ में आया आपको? कितना सिंपल ये डिफिनीशन है और थ्योरम है, किस तरह से आया ये आपको याद रखना है, ठीक है. नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. प्रॉब्लम नंबर 1. Example 1. If A1 and A2 are two mutually exclusive, if A1 and A2 are two mutually exclusive and exhaustive events. Exhaustive events of sample spaces. Events of sample spaces. Okay, and if B is another event, B is another event defined on sample spaces, another event defined on sample spaces, okay, such that probability is given, probability of A1 equal to 0.6, comma, probability of A2 is given 0.4, probability of कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 के साथ दिया है आपको, कितना दिया है? A1 के साथ 0.4 दिया है आपको, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू
A2 के साथ आपको दिया है प्रोबेबिलिटी, हाउ मच गिवन, 0.5. then find the probability of B. Find probability of B. Okay, how to do this? Simply here we will use total probability theorem. So solution, we will do total probability theorem. So we write solution. Solution. What is given here? Just write down all these things. Given, all the things is given. What is given here? We just write down P of A1. How much given? 0.6. P of A2. How much given? 0.4. And P of B by A1. B by A1 is given. How much given? 0.4. And P of B by A2 is given. How much given it is? A2 is 0.5. Therefore, by total probability theorem, what is the total probability theorem? We have P of B equal to how much? We write P of A1 into P of B by A1 and plus P of A2 into P of B by A2. Just write down all this probability over here. Probability of A1 is how much? 0.6 into, this is the into sign. Probability of B by A1, how much? 0.4. And plus probability of A2. A2 is how much? 0.4 into probability of B by A2. B by A2 is 0.5. Just multiply this. So multiply karo 2.4 and plus 2.0. So how much this? 4.4. How much? नहीं 2.4 नहीं 0 point how much? This is probability here. Probability cannot exceed 1. Okay, so this is what 0.24, 2 point decimal 1 and 2, and plus 0 point how much? 20. 5 for the 20, that is 0 point this. So you will get 0.44 is a required probability. Getting? How easy this? You understood this much? The students, you getting? Yes, sir. बहुत simple है problem. Now let us do another problem. Okay, I think visible. Now example number 2. This is example 2. Okay, what are the given? The three boxes A, B, C contains 30, 50, 20 bulbs respectively. The percentage of defective bulbs in these boxes are 4, 3, 5 respectively. A box is selected at random, and what is the probability that the bulbs will be defective? Just see here the solution, how to solve this problem first. Solution. Okay, how many boxes are given? Just read the question carefully. How many boxes are given? Box, एक बॉक्स हो गया, और बॉक्स दो हो गए, and box 3 boxes are given. Okay, so 3 boxes are box number this A, B, and box C as given. So we draw the first figure, this one, this one. इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं, ऐसा इतना बड़ा करने का.
सर वो सी है ना? हाँ वो सी है, उसको मैंने बी लिखा है। 3 बॉक्सेस ए बी सी आर गिवन। ओके, इसको पहले आप ड्रॉ कर लो, जैसा मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस यहाँ पे मैच कर दो, इसको यहाँ पे मैच कर दो। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 3 बॉक्सेस ए बी सी आर गिवन, यहाँ पे ए बी सी गिवन है। ओके, एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन। द परसेंटेज ऑफ 30, 50 and 20 bulbs respectively. The percentage of defective bulbs in these boxes are 4, 3, 5. सभी डेटा आपको किस में दिया है? परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1, सो ऑल द डेटा गिवन इन परसेंटेज। Okay, so the percentage of the defective bulbs in these boxes are 4, 3, 5 respectively. A box is selected at random. What is the probability that the bulbs will be defective? So we first let even be the event. Let यहाँ पे लिखेंगे even be the event that bulbs drawn from the box A1. Okay. Similarly यहाँ पे लिखेंगे let E2 be the event that bulbs drawn from the box B, और यहाँ पे let E3 be the event that bulbs drawn from the box C. Okay, and their respective probability is given. Their respective probability P of E1 is given. How much given? पहला दिया है 30%. This is what in percentage, 30%, and second one 50%. In second one is given is how much? 50%, and third one is given how much? 20%. Probability of E3 आपको दिया है, कितना दिया है? 30, 50, 30, 50 and 20. So this is 20% is given. सर हाँ, परसेंटेज तो 4, 3 एंड 5 है ना? 4, 3, 5 अभी अभी नेक्स्ट आने वाला है ना, स्टेप आप देखते जाओ। अच्छा। नाउ व्हाट? Now what? Let a box is selected random. What is the probability that bulbs will be defective? यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ let A be the event that bulbs, let A be the event that bulbs drawn from the box is defective. Bulb drawn from the box is defective. So फ्रॉम डिफेक्टिव बल्ब अगर बॉक्स A1 से सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? P ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी? A1 की। probability of A by E1. We have to determine the probability of A. In such case, probability of E1 हो चुका है, means happen. Probability of E1 is already found here. So what is given here? Probability for this. This is given 4%. So this is what? 4%. Okay. So now for this, let A be the event that the let A be the event that the probability the bulb drawn from the box number 2 means B से ड्रॉ किया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगा? P of A by A2 equal to how much? 3%, equal to 3%. Okay, now come to here. Let A be the event that the bulbs drawn from the box C, which is the defective. So P conditional probability is for C के लिए क्या आएगा? P of A by E3. Okay, and which is given how much? Which is given how much? 5%. Okay, which is given 5%. So what have to find out? Have to find out let total probability किसकी? Total probability we have to determine किसकी? A की. We have to determine the total probability of A. Getting? Total probability कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा, बाकी सबके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी उसके साइड में आएगा। जो ए है तो इसके ए के साइड में लिखेंगे, बी है तो बी के साइड में यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे इस लाइन पे,
और सी है तो मतलब कि E3 है तो इस लाइन के लिए है। मतलब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा उसके सामने और उसके समीप वहाँ पे लिखना है। ठीक है। नाउ वी विल यूज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देयरफॉर बाय टोटल by theorem on total probability, by theorem on total probability, just add all these things. By theorem on total probability we have P of A, किसकी probability हमको निकालना है? P of A. We have to find out probability of A. P of A is what? P of E1, P of E1 into P of A by E1, A by E1, and plus P of E2 divide into P of A by E2, and plus P of E3 means probability of E3 into probability of conditional probability with E3, P of A by E3. Okay, just write down all these things. Write down the value of all probability. So P of E1 is how much? 30%. 30% को हम लोग कैसा लिखते हैं? 30/100, 30/100 into P of A by E1 is how much? 4%. इसको कैसे लिखेंगे हम? 4/100. Percent means 100 ना, divisible by 100, and plus this is what? 50%. 50/100, 50/100 into 3/100. 3% means what? 3/100, and plus 20%, that is 20/100 into 5%, 5/100. चलो इसको सॉल्व करेंगे. So we solve this. So how much we get? So ऊपर का मल्टीप्लाई करो ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ. So 30 multiply by 4. This is what? 120 divide by how much this? कितने जीरो हो जाएंगे? 40. 1 2 40. 10000. Okay, plus 150. 50 multiply by 3. 150 divide by 10000, and plus 5 to the 10, that is what? 100, and divide by, just write down 10000, 40. Now 10000, 40, huh? And 120 plus 150 and plus 100. How much? Total how much? Just do the total. 370 by 370. 370 by 10000, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? जस्ट डिवाइड करो. 0.037. 0.037. Okay, 0.037. So this is your total probability. Problem कितना simple था? You understood this problem? First of all, what I have to do first? Just write down the boxes, number of boxes या number of ons, जो भी दिया है वो आप वहाँ पे लिख लीजिए. और आपको हमेशा इसी तरीके से डायग्राम बनाना है, इसी तरह से. ठीक है. अगर 4 बॉक्सेस दिया है तो आपको ABCD कर लो यहाँ पे, तो उसकी तरह यहाँ पर भी एक लाइन मारोगे, फिर उसको भी इस तरह से मैच करोगे. ठीक है. एंड राइट डाउन दियर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट को लेट करो, लेट E1 बी द इवेंट दैट bulk drawn from the box number A. Let E2 be the event that bulk drawn from the box number B. सिमिलरली C D ऐसा करके देंगे, और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दिया रहेगा, और उसको यहाँ पे लिखने का इस लाइन के ऊपर सभी का. ठीक है. और जो ए लाइन आता है नीचे वाला इस तरह से तिरछी वाली लाइन, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना है. किसके साथ? किसके साथ लिखना है? जो यहाँ पे लास्ट में पूछा जाएगा. अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब विल बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब पूछ रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लेट ए बी द इवेंट दैट बल्ब्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, ऐसा नहीं बोला है कि इस बॉक्स से चाहिए, बॉक्स नंबर ए से चाहिए, किसी भी बॉक्स से बोला है। लेट ए बी द इवेंट दैट बल्ब ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज डिफेक्टिव, तो मैंने इवेंट ए ले लिया और उसके रिस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबके यहाँ पे लिख दिया, वो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, और जो फाइंड करना रहेगा उसको यहाँ पे सेंटर पे लिखना है बीच में, ठीक है। आपको ये थ्योरम तो पता ही है, ये रिजल्ट, और यहाँ पे सबकी वैल्यू रख के ऐड कर दो। सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम फॉर यू। ऐसा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आता है, और आपके यूनिट टेस्ट में भी एक प्रॉब्लम डालूंगा मैं, ठीक है। अंडरस्टूड दिस? यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यू Yes, sir. गेट? हाँ और आपने P ऑफ A लिया तो उसकी बजाय P ऑफ B भी ले सकते हैं ना हम लोग? हाँ हाँ, पी अब बी, कोई भी ले सकते हैं ना, मतलब यस कोई यस। भी एक ना है? देखो ओके यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे ए दिया है इसलिए ए लिया, ऐसा नहीं लेने का, मतलब यहाँ पे कुछ दूसरी प्रोबेबिलिटी लो जो यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये बॉक्स से कुछ मतलब नहीं है, ये तो हमने ऐसे लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे आप ई ले लो, ई, ठीक है, आप ज़्यादा समझ में आएगा। ई सिंपली ई ले लो, या तो ऐसा लेने का जो यहाँ पे बॉक्स में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे आप, समझ में आया? इससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे ए दिया इसलिए ए लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप क्या लोगे, ई ले लो, सिंपली ई ले लो। ओके सर। हाँ, सिंपली ई ले लो आप। रफ करूंगा तो पूरा चला जाएगा। यहाँ पे आप कौन सा इवेंट लेने का, लेट ई बी द इवेंट, हम इवेंट की बात कर रहे हैं तो आप ई लेने का हमेशा, ठीक है। गेटिंग? ओके सर। हाँ, यस सर। इस बॉक्स से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी दिया था, आपने सोचा होगा कि सर ने ए वाला लिया है, ए यहाँ इधर से, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 3 इज एक्सरसाइज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट theorem, bias theorem, which is the very important theorem. And this theorem, based on this theorem, one problem will come in your exam. Okay, what's your theorem says? Bias theorem, which is the very important theorem. Huh? Based on this theorem, 8 mark questions definitely come in your exam. So this is bias theorem. And what bias theorem says? Let the event a1, a2, a3 up to an be the partition of sample space S, and let B be any other event defined on S. And if Pai not equal to 0 for all I running from 1 to n, and P of B not equal to 0, then we have P of AI by B equal to P of AI into P of B by AI divided by summation of P of AI into P of B by AI, where I running from 1 to n. Means what? A1, A2, A3 up to AN are partition of sample spaces. जैसा मैंने पीछे आपको बताया था partitions कैसे होते हैं. So these are the partition, this type का, okay? These are the partitions of sample space, yes. And then we will have the total probability. Then we will have total probability. This one, okay? This one probability. Total probability P of B, like this. Then after this, what happened? After this, what happened? आपको टोटल प्रोबेबिलिटी तक सेम करना है, नथिंग इज चेंज देयर. देन इफ आई आस्क the bulbs drawn from the box A, then you can apply the bias theorem. All the things are same, but thing is what? The bulbs drawn from the box number A, then you can apply this. If I say the bulbs drawn from the box number B or C, then bias theorem will be applicable. यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या बोला था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज डिफेक्टिव. उसने ऐसा नहीं बोला कि बॉक्स ए से निकालो, उसने क्या बोला? बल्ब्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. अब चाहे कौन सा भी बॉक्स से निकालो, लेकिन वो डिफेक्टिव होना चाहिए.
तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यह कहता है कि बल्ब्स निकालो किसी भी बॉक्स से चलेगा, लेकिन वो डिफेक्टिव होना चाहिए। और बायस थ्योरम क्या बोला है? बल्ब्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स नंबर, कोई पर्टिकुलर बॉक्स बोला है कि बॉक्स नंबर सी से निकालो, कोई बोला है बॉक्स नंबर बी से निकालो, तो ये आपका बायस थ्योरम है। गेटिंग? बायस थ्योरम states that bulbs drawn from particular box, that is called, find the probability that bulbs drawn from the particular box C से निकालो आप, उसकी probability बताओ, that is your Bayes theorem. Getting? Yes, sir. हाँ, now we will do problem based on this. चलो कौन सा प्रॉब्लम ले? सभी सेम है, परसेंटेज वाला मैंने कर दिया था ना, चलो ये वाला देखते हैं। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो देख के डरना नहीं, प्रॉब्लम बहुत इजी है, सिंपल है। इसको आप बुक से पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक से, आप ऐसा लगेगा कि मुझे आता नहीं है, प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट आपको महसूस करेगा। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ। ओके, लेट अस सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर, विच प्रॉब्लम इज दिस? प्रॉब्लम नंबर 4 ना? यस और नो? Yes, sir. हाँ, प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस। What is given? Just read this. A manufacturing firm produces steel pipe in 3 plants with daily production of 500, 1000 and 2000 units. According to past experience, it is known that the fraction of defective output produced by 3 plants are respectively 0.005, 0.008 and 0.010. If a pipe is selected at random from a day output and was found to be defective, what is the probability that it comes from the first plant? क्या बोला ये? पर्टिकुलर प्लांट बता दिया कि उसी से हमको निकाल के बताओ प्रोबेबिलिटी। इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट। अगर एक सिंपली ऐसा बोलता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब ड्रॉन फ्रॉम द प्लांट इज डिफेक्टिव, तो आप वहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। और यहाँ पे आप इसने क्या बोला है? इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट, मतलब कोई एक प्लांट बता दिया कि उसी से हमको निकाल के बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे, पहले बताएंगे कितने फर्म्स हैं। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस स्टील पाइप इन 3 प्लांट्स। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर? हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर? 3 प्लांट्स। चलो यहाँ पे लिखो, प्लांट्स 3 बताया था इसने। प्लांट नंबर 1 P1 ले लिया मैंने, इसको है थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो नहीं समझेगा। प्लांट नंबर 2 P2 एंड प्लांट नंबर 3 P3। इसने ऐसा बताया। चलिए डायग्राम सेम बनाएंगे। डायग्राम इतना बड़ा हो, इसको थोड़ा बड़ा तक ले जाओ, यहाँ तक। देन दिस। अब जब तक डायग्राम प्रॉपरली ये नहीं बनाओगे, आपको डेटा नहीं समझ में आएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको अभी आपको इधर से मैच कर दो और इसको इधर से मैच कर दो, ठीक है? ओके, हाँ, व्हाट इज गिवन हियर? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या लेट करते थे? लेट even be the event that manufacturing firm produces steel pipe. Let even be the event that pipe drawn from the first plant, okay? And let E2 be the event that pipe drawn from the second plant. And let E3 be the event that pipe drawn from the third plant, okay? And their respective probability is given. Probability of event हमको दिया है, कितना दिया है स्नेहा? बोलिए स्नेहा, हाँ सर। कितना प्रोबेबिलिटी दिया है फर्स्ट प्लांट का? हाँ 500। 500 दिया है, यस। इसकी प्रोबेबिलिटी 500।
अभी कौन बोलेगा? निकिता, निकिता है यहाँ पे? मुझे देखने दो कौन कौन है यहाँ पे। सिद्धेश, सत्यम, हाँ इशिका, इशिका टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000. 1000? ओके, इसके लिए हमको क्या दिया है? 1000 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच कम्स फ्रॉम द प्लांट नंबर 2 से हमको क्या दिया? 1000. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 which is given how much? 2000. 2000 unit. 2000 unit. Okay. Now what up to? अभी इसने क्या बोला है? If a pipe is selected at random from a day output and was found to be defective, and what is the probability that it comes from the first plant? तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे? Let A be the event that probability. Let A be the event that was found to be defective and which is drawn from the first plant. यहाँ पे मैं क्या लिया? A ले लिया. Let A be the event. तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? P of A बाय किसके साथ? किसके साथ निकालना है हमको? E1 के साथ. वो कितना आया हमारा? 0 पॉइंट कितना दिया है यहाँ पे? 0.005. 0.005. ओके, हो गया इसके लिए. और P2 के लिए let A be the event that pipe drawn which is found to be defective from the plant number 2 से. तो यहाँ पे P of A by E2 which is how much? 0.008. Getting? और E3 is what? A by E3 which is how much? सिद्धेश बताओ how much? P of A by E3. Conditional probability of A. 0.010. Yes, 0.010. हाँ, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटर पॉइंट पे क्या हमको लिखना है? अब क्वेश्चन को रीड करो लास्ट वाला. If a pipe is selected at random from a day output and was found to be defective, and what is the probability that it comes from the first plant? मतलब फर्स्ट प्लांट की बात कर रहा है ए वाला. तो जो फर्स्ट प्लांट के लिए ये क्या है आपका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाय E1 है. इसको हम यहाँ पे रिवर्स करके लिखेंगे. A बाय E1 फर्स्ट प्लांट के लिए बोला ना, तो इसको यहाँ पे हम रिवर्स करके लिखेंगे. P ऑफ E1 बाय A. ठीक है, जिससे पूछा जाएगा उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिखना है. इसकी प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है. समझ में आए? इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट डेटा दिया हुआ है. नाउ वी विल यूज बायस थ्योरम. देयरफॉर बाय यूजिंग बायस थ्योरम हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा. Therefore, by using Bayes theorem, Bayes theorem. What is the Bayes theorem says that? Bayes theorem says that what is the total probability? First, पहले मैं total probability लिखूंगा. P of बोलो total probability P of A1 into P of A by E1, correct? And plus P of E2 into P of A by E2, okay? And plus P of E3 into P of A by A3, correct? This is what? Total probability.
इसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखने का। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? इट कम्स फ्रॉम द प्लांट नंबर, फर्स्ट प्लांट से पूछा है उसने। तो जिसको बोला है फर्स्ट प्लांट से, फर्स्ट प्लांट के लिए क्या है? ए वाला टर्म। तो ए वाला टर्म को हमेशा ऊपर लिखने का, जिससे पूछा जाए वो वाला टर्म ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। सो पे ऑफ E1 इंटू पे ऑफ ए बाय E1। और क्या पूछा है वो आप लिख दो। क्या पूछा है इसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। यही पूछा है ना आपको स्टूडेंट्स? यही पूछा है ना? Yes, बोलो। sir. हाँ यस सर। हाँ, फार्मूला कैसे रिमेम्बर करना आपको पता चला? नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना है और ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा कि बॉक्स नंबर ए से निकाला है तो उसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगा ऊपर लिखना है, और जो पूछा जाएगा उसको यहाँ पर लिखना है। गेट इट? चलो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। सब्स्टिट्यूट करो। P of E1 is how much? Tell me Sneha. P of E1 बोलो। 500. 500। और P of A by E1 0.005. 0.005। चलिए नेक्स्ट सेम यही आएगा यहाँ पे। P of E1 is 500 into 0.005 and plus P of E2, tell me 1000। 1000 then multiply by conditional probability of A with respect to E3, sorry E2। 0.008 हाँ 0.008 प्लस नेक्स्ट बोलो P of E3 2000 2000 and conditional probability with respect to E3 0.010 0.010। यही है ना? इसको जैसे सिंप्लीफाई करो। चलो मल्टीप्लाई करो ऊपर का, ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.5। एंड नीचे आ जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.5। देन प्लस इधर मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म you will get 8 and plus this term multiply, you will get how much? 20. 20। चलो सिंप्लीफाई करो। 2.5 डिवाइड बाय नीचे का ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट? 30.5. 30.5। 5. चलो इसको और डिवाइड कर दो। 0.8196. 0.0 8 0.8196. ठीक से डिवाइड करो। 0.0 डिवाइड प्रॉपर्ली। बोलो कितना? 0.081। 0.081 हाँ 881 ना, ऐसा आया? 8196 आया से लाउडली। सर। 0.8196 अच्छा 0.81 ना, हाँ ऐसा बोला ना। Yeah. 0.0 नहीं आ रहा है आपका? चलिए आपका जितना है उतना लिखो। हाउ मच दिस? 0.081 दिस मच, इट इज करेक्ट? yes अच्छा 82 आएगा हाँ 0.08196 है ना बस 8196 इतना ही लिखने के, ज़्यादा मत लिखो। हाँ चलो सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना है और इस तरह से आपको बायस थ्योरम यूज करना है। बायस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं तो 6 मार्क का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही, और यूनिट टेस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का, डेफिनेटली। ओके, so please be careful for that and you must have to prepare bias theorem and total probability theorem. Okay, so a factory manufacturing television set gets its supply of components from 4 unit.
A, B, C, D in the following propagation: 15%, 20%, 30%, and 35% respectively. It was found that of the supply received, 1%, 2%, 2%, and 3% articles are defective. A television set was chosen at random from the total output and was found to be defective. And what is the probability that it comes from unit D? It comes from the unit D. तो आपको how many units are given? A, B, C, D units are given. और सबकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे लिखो, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड दियर रिस्पेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे पहले में कितने प्लांट्स थे? पहले में 3 थे, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 की तरह बनाने का. सो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना. इज दिस ओके फॉर यू ना सिद्धेश? Yes, sir. हाँ. सो गिवन यूनिट 1 मीन्स ए आपको दिया है, बी, सी एंड डी आपको दिया हुआ है. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से. और इसको ऐसा ले लिया. फिर सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको ऐसा मैच किया, ऐसा मैच किया, और इसको आप ऐसा मैच करो, ऐसा मैच करो. ठीक है. हाँ. अभी एक कौन सा इवेंट है? E1 विद द इवेंट कहाँ का है? यूनिट ए का है. एंड E2 विद द इवेंट विच इज़ फॉर यूनिट बी. एंड E3 विद द इवेंट विच इज़ फॉर यूनिट सी. एंड E4 with the event which is for unit D. And write down their respective probability P of E1, okay, and P of E2. यहाँ पे आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा. Then P of E3, write down here. P of E4, राइट डाउन ओवर हियर. ठीक है. और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लेट ए बी द इवेंट. मैं यहाँ पे ई लेता हूँ, ए की जगह पे ई लेता हूँ. ठीक है. आपको ए लो, ई लो, आपकी मर्जी. लेकिन यहाँ से कोई सिंबल नहीं चूज करने का, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसमें जो नहीं दिया रहेगा वो वाला लेने का. मैं ई लेता हूँ, और आप भी हमेशा ई ही चूज करो. लेट ई बी द इवेंट दैट दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू E1 के साथ. यहाँ पे लिखा. और P ऑफ E बाय E2, इसको यहाँ पे लिखो आप, और इसको यहाँ पे लिखो. इसके लिए हो गया, और इसके लिए P ऑफ E बाय E3 आप यहाँ पे लिखो. एंड P ऑफ, इसको बाहर लिखते हैं, P ऑफ E बाय E4 आप यहाँ पे लिखो. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है इसने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम यूनिट डी. किसका पूछ रहा है? ये यूनिट डी से आना चाहिए, इस यूनिट से. तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको? बोलो. जिसका बताया, क्या बताया यहाँ पे? जिससे पूछा जाए उसका क्या करने का? रिवर्स करके लिखने का. P ऑफ E4 बाय E. समझ में आया आपको स्टूडेंट? आपको समझ में आया? यस सर. Yes, sir. E4 बाय E. तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? आप फार्मूला वहाँ पे लिख लेना और उसको कैलकुलेट कर लेना. यहाँ तक हो जाएगा आपका कि मैं लिख के दूँ फार्मूला? हो जाएगा सर. देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो,
इसका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसका करो और इसका करो। उसको पूरा क्या लिखने का आपको नीचे लिखना है, और ऊपर क्या लिखना है आपको, जिससे पूछा जाएगा। किससे पूछा जा रहा है, यूनिट डी से, तो ए इसका ए वाला टर्म ऊपर लिखो और बाकी दिस इक्वल टू यहाँ पे। कितना सिंपल है फार्मूला, याद करने में डिफिकल्ट है? याद करने में फार्मूला डिफिकल्ट है? नो नो सर। सर। हाँ, इसका मैं आपको आंसर बता दूं। आंसर आप कैलकुलेट कर लेना। आंसर आपको आएगा 21/44। 21/44, ठीक है। शेयर इफ आई आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द यूनिट डी, तो आपको एक बार फार्मूला लिखना पड़ेगा। इफ आई आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द यूनिट बी सी एंड डी, तो आपको 3 बार फार्मूला लिखना है और चेंज कर करके, और 3 बार आपको कैलकुलेट करना है। और स्ट्रक्चर आपका डायग्राम सेम रहेगा सबके लिए, ठीक है। आपको जिसको पूछा जाएगा उसको न्यूमरेटर ऊपर रखो, न्यूमरेटर पे, और बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे रिवर्स करके आपको लिखना है। यहाँ पे जिस तरह से जिस बॉक्स से पूछा जाएगा उस तरह से आपको फार्मूला बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है। यू अंडरस्टूड दिस सिद्धेश? Yes, यू sir. अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल है। Yes, sir. यहाँ पे मैंने एक ही यूनिट बोला, इट कम्स फ्रॉम द यूनिट डी, तो आपको एक बार फार्मूला लिखना है, कैलकुलेट करना है। इफ आई आस्क इट कम्स फ्रॉम द यूनिट सी एंड डी, तो आपको 2 बार फार्मूला लिखना है और 2 बार कैलकुलेट करना है। सो दिस इज व्हाट योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बायस थ्योरम, which are very 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 important for you. 6 marks question or 8 mark question definitely come in your exam, and 1 question definitely I will ask in your unit test. तो ये जो प्रॉब्लम कराया, जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसी में से हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम हो, ठीक है। समझ में आ रहा है इसी का? सिद्धेश, यस सर। प्रिंस, Yes, sir. हाँ, तो ये सब जरा प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और इसको सॉल्व कीजिए।